अकाउंट्स बनाते हैं, तो अलग अलग तरीके के 3 स्टेटमेंट्स या अकाउंट्स बनते हैं. आई विल टेल यू व्हाट दोज अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स आर. तो जो इंडेक्स आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, उसको अगर आप देखेंगे तो वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज फाइनल अकाउंट, हाउ फाइनल अकाउंट इज prepared, what is a trading account, what is the importance of trading account, what is profit and loss account, what is the importance of profit and loss account. Then there is a statement that we prepare that is called financial statement, balance sheet. So we will try to discuss the importance of balance sheet as well. Balance sheet वो financial statement है जो usually हर कोई आदमी जो financial industry में या banking में या commerce से related किसी field में काम करता है और किसी भी organization की फाइनेंशियल पोजीशन को देखना चाहता है, वो बैलेंस शीट को रेफर करता है. He will directly go into the balance sheet and see how the company is doing. वो कैसे बनती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो जब हम टाइम के साथ कवर करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा. But balance sheet is something which is usually referred by anybody who is an outsider to the company, who wants to understand how the organization is doing, what are the profits, what are the assets, what are the liabilities. तो वो सबसे पहले बैलेंस शीट में जाएगा, right? So it's a usual financial statement, but balance sheet is not an account, it's a financial statement. I will come back to that as well. क्या चीज अकाउंट नहीं है, जैसे ट्रायल बैलेंस is not an account, it's a statement, right? Similarly, balance sheet is also not an account, it is a statement. Why? I will tell you that when I will cover balance sheet as a syllabus. Also, the other two accounts, the trading account and profit and loss account, ये दोनों proper accounts हैं. इसके अंदर accounts mention किए जाएंगे और उसके amounts भी mention किए जाएंगे, totaling की जाएगी, balancing की जाएगी, and we'll take out the balances as well, right? तो वो चीज हम अलग से समझने की कोशिश करेंगे. Now let us talk about final accounts. So final account is a very broad term which contains two different accounts and one statement. So the first one is the trading account, the second one is the profit and loss account, and the last one is a statement which is a balance sheet. Trading account क्या है? Trading account एक वो ऐसा account है जो usually आपके business की core activities, trading activities को capture करता है, उससे related profit and loss calculate करता है. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ट्रेडिंग अकाउंट कैप्चर्स कोर बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज. if your business is into trading, then it will capture all the expenses and incomes related to the trading of the business, your core business, and it calculates the gross profit or the gross loss of the business, right? मैं रिपीट कर रहा हूं, ट्रेडिंग जिस कंपनी का बिजनेस ट्रेडिंग है, सामान एक जगह से खरीद कर दूसरी जगह बेचती है, वो कंपनी की जो बेसिक ट्रेडिंग एक्टिविटीज हैं, जो उसका बिजनेस है, ब्रेड एंड बटर बिजनेस है, उसको ट्रेडिंग अकाउंट कहा जाता है. उसको उसके खर्चे और उसकी इनकम को कैप्चर करके वो एक अकाउंट बनाता है, उस अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करता है. ठीक है, क्लियर? सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टॉक्स अबाउट एवरी अदर एक्सपेंडिचर that is being done on the business, every other expenditure apart from the expenses and incomes captured in the trading account. जितना भी खर्चा या जितनी भी इनकम बिजनेस को हो रहे हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैप्चर होते हैं. जो ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होता है, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है. एंड देन अल्टीमेटली यू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस आफ्टर यू कैप्चर ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्लियर? तो ये दो अकाउंट्स बनते हैं. अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज स्पेसिफिकली ट्रेडिंग, और अगर वो ट्रेडिंग नहीं करते हैं कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो क्या होगा? तो जब जिस कंपनी में ट्रेडिंग नहीं होती है, ट्रेडिंग का मतलब बिल्कुल क्लियर है, एक जगह से सामान खरीद के दूसरी जगह बेचना. चाहे आप होलसेलर से सामान खरीद के रिटेलर को बेचते हो, चाहे आप होलसेलर हो, मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद करके रिटेलर को बेचते हो, राइट? या आप रिटेलर हो, होलसेलर से सामान खरीद करके, मंडी से सब्जियां खरीद करके ला करके ठेल पर लगा करके घरों तक पहुंचाते हो, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे. बिकॉज यू आर नॉट इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग एनी प्रोडक्ट, यू आर जस्ट ट्रांसफरिंग द ओनरशिप फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी. तो ये आप ट्रेडिंग कर रहे हो. दिस इज प्योरली ट्रेडिंग, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन सेक्शन to the other section of the business. You're selling it off to the other section of the business.
लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या प्रोडक्शन कर रहा है, प्योर प्रोडक्ट नया बना रहा है, उसके केस में हम ट्रेडिंग अकाउंट की जगह मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे। और मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब है कि आप रॉ मटेरियल कहीं एक जगह से खरीद के लाए, राइट, और उस रॉ मटेरियल को आपने किसी जगह पर ला करके रखा और उस रॉ मटेरियल से लेबर का यूज किया, कैपिटल का यूज किया, मशीनरी का यूज किया, राइट, इन सब चीजों का यूज करके आप उसको एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो। क्लियर? फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद उसको ले जाकर के आप किसी होलसेलर को या किसी रिटेलर को या हुएवर इज इंटरेस्टेड उसको आप बेचते हो। तो दिस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे और जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं वो लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। क्लियर? समझ में आया? एनीबडी हु हैज गॉट क्वेश्चंस एट दिस स्टेज? मैं अभी सब बताऊंगा कैसे बनेगा, व्हाट विल बी द फॉर्मेट एटसेट्रा, वो तो सब मैं बताऊंगा, बट दीज आर द टू वेरी बेसिक अकाउंट्स दैट आर प्रिपेयर्ड एट द बिगिनिंग। तो जब जो आप पढ़ रहे हैं फाइनल अकाउंट्स, इसमें ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, and then after trading and or manufacturing account is prepared, you will prepare profit and loss account. Clear? Balance sheet. Balance sheet profit and loss account के profit से भी बनती है और ट्रायल बैलेंस के बहुत सारे ऐसे एसेट्स और लाइबिलिटीज जिसको आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालते हैं उनसे बनती है। क्योंकि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्योरली एक्सपेंसेस और इनकम से बनता है, प्योरली एक्सपेंसेस और इनकम से बनता है, विच मीन्स अ लॉट ऑफ व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स, इनसे बनता है। ज्यादातर पर्सनल अकाउंट्स और रियल अकाउंट्स बैलेंस शीट में जाते हैं, ज्यादातर पर्सनल अकाउंट्स और कुछ रियल अकाउंट्स बैलेंस शीट में जाते हैं। तो ये मैं आपको साथ क्लियरली बताऊंगा क्या क्या होते हैं वो, कैसे कैसे जाएंगे, बट आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं। ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स विल गो इनटू ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड assets and liabilities will be transferred into balance sheet. और बैलेंस शीट ऑब्वियसली आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलेगा उसको भी बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। आई विल शो यू हाउ टू डू दैट। किसी को कोई क्वेश्चन इस स्टेज पर आया हो तो प्लीज अभी पूछिए। अगर आप सभी एक ही बात का उपयोग कर रहे हैं, ये थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है, आप लोगों को परेशान करेगा अगर इस स्टेज में समझ में नहीं आएगा तो। मास्क हमेशा पहन के रखें, हर 6 से 8 घंटों में मास्क को बदलते रहें। एनी क्वेश्चंस? डिसइंफेक्ट करें, कम से कम 20 सेकंड के लिए अपने हाथों को अक्सर साबुन और पानी से धोएं या 70% अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर। Okay, I hope there are no questions, so I'm moving forward. Preparation. So क्या किया जाता है जब आप ट्रायल बैलेंसेस बनाते हैं, जो आपने ट्रायल बैलेंस बनाया है 9th क्लास में, आई थिंक इन द फर्स्ट सेमेस्टर, तो उस ट्रायल बैलेंस में आप बहुत सारे एक्सपेंसेस, इनकम्स, राइट, अलग अलग तरीके के अकाउंट्स को ला करके उसके बैलेंसेस वहां पर लिखते हैं। हमने बैलेंसिंग सीखी थी लेजर अकाउंट्स में बनाने वक्त, उन बैलेंसेस को आप ट्रायल बैलेंस में लिखते हो। हर अकाउंट आप चेक करोगे ट्रायल बैलेंस में कि किस टाइप का अकाउंट है, अगर वो एक्सपेंस है या फिर इनकम है तो वो हम ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो अकाउंट्स ऐसे हैं जो बाय नेचर एसेट हैं या लाइबिलिटी हैं, राइट, तो उनको हम ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में, राइट। तो जो भी आप लेजर पोस्टिंग्स करके बैलेंसेस निकालते हो उनको आप ट्रांसफर करते हो ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस से आप ट्रांसफर करते हो एक्सपेंसेस, इनकम्स को ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और उसके बाद जो बैलेंसेस ऐसे होते हैं जो एसेट्स या लाइबिलिटीज नेचर के होते हैं उनको आप ट्रांसफर करते हो बैलेंस शीट के अंदर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक्सपेंसेस और इनकम्स तो क्लियर है कि क्या होती है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस का एक एग्जांपल मैं देता हूँ, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट पेड, राइट, डिस्काउंट गिवन, और भी बहुत तरीके के एक्सपेंसेस हम करते हैं। कार्टेज पेड, मान लीजिए आपने मटेरियल खरीदा या मटेरियल बेचा, उसका आपने ट्रक का भाड़ा दिया,
तो वो सब खर्चे में आ जाएगा। इनकम, कोई डिस्काउंट आपको रिसीव हुआ हो, सेल्स हुई हो, वो इनकम होती है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज एक्सपेंसेस, ये सारे तो एक्सपेंसेस और इनकम में आ गए। अब आता है व्हाट आर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो मैं एक बार क्लैरिफाई कर देता हूं कि एसेट्स और लायबिलिटीज का क्या मीनिंग होता है। मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, ये हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, बट एक बार फिर से बता देता हूं। एसेट्स का मतलब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कंपनी एक बार करती है और कई सालों तक वो हमारे काम आती है, and they are fixed assets with us. Some of them are fixed assets with us or current assets with us. Fixed assets क्या होती हैं कंपनी के अंदर? फर्नीचर, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग, फिक्सचर्स, ये सारी चीजें जो हैं जो कंपनी के पास परमानेंट नेचर की होती हैं, उनको आप एसेट्स बोलते हैं। एंड व्हाट आर द लायबिलिटीज? Liabilities are those which are supposed to be paid back to the creditor after some time. Liabilities वो जो आपकी जिम्मेदारी है कि आप आफ्टर सम टाइम उसको पे कर देंगे। तो कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर जिससे आपने उधार पे माल खरीदा है 15-20 दिन, 1 महीने के उधार पर, उसको आपको पैसे वापस करने हैं, राइट? शेयर्स, डिबेंचर्स, कैपिटल मैंने आप लोगों को बताया था कि कैपिटल क्योंकि बिजनेस की होती है, बिजनेस आपसे अलग होता है, इसलिए कैपिटल पर्सनल नेचर का अकाउंट है। तो कैपिटल इज योर लायबिलिटी, राइट? यू हैव टू गिव प्रॉफिट टू द कैपिटल, यू हैव टू गिव डिविडेंड टू द कैपिटल। तो ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये चीजें लायबिलिटीज में आती हैं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? एसेट्स और लायबिलिटीज दोबारा क्लैरिफाई कर दिया मैंने। कोई कंफ्यूजन इसमें? क्लियर है सबको? Yes, sir. Okay, good. Yes, sir. Good. ठीक है। Then comes what is the accounting cycle? कैसे अकाउंटिंग साइकिल, ये मैं दोबारा से कैप्चर कर रहा हूं जो हम लोगों ने 9th में भी पढ़ा है, छोटे छोटे स्टेप्स, और जो अब हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों ने 9th में क्या पढ़ा था? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, परचेज बुक, सेल्स बुक, राइट, कैश बुक, पेटी कैश बुक, राइट, ये सब चीजें पढ़ी थी। तो ये ओरिजिनल रिकॉर्ड्स होते हैं जिससे आप बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है इनिशियली वहां पर रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद वहां से आप जर्नल बनाते हैं, विच इज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल, परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, ये सब बनाते हैं। उसके बाद जर्नल से एंट्रीज को पोस्ट करते हैं लेजर अकाउंट में, जिसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। लेजर अकाउंट्स में आप ट्रांसफर करते हैं। लेजर अकाउंट क्या होता है? हर एक पर्टिकुलर अकाउंट का यूनिक अकाउंट होता है, एक यूनिक पोस्टिंग होती है जिसको आप क्लासिफिकेशन कहते हैं। कैश अलग, डिस्काउंट अलग, सेल्स अलग, परचेजेस अलग, राइट, बैंक अकाउंट अलग। इस तरह से आप एक एक चीज अलग अलग करके बनाते हैं, उसके अलग अलग बैलेंसेस निकालते हैं। उसके बाद आप बैलेंसिंग करते हैं रियल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स की। इसमें नॉमिनल क्यों नहीं लिखा हुआ आई डोंट नो, बट बैलेंसिंग करते हैं हर उस अकाउंट की जिसको आपने क्लासिफाई किया है लेजर में, राइट? तो किसी क्रेडिटर, किसी डेटर का नाम होता है, जैसे रमेश से आपने सामान उधार खरीदा, नरेश को बेचा, सबके अकाउंट्स आप बनाते हैं, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल, और उसको आप फिर बैलेंस करते हैं। उन बैलेंसेस की एक्यूरेसी चेक करने के लिए आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। उस बैलेंसेस की एक्यूरेसी चेक करने के लिए आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि दोनों साइड का टोटल बराबर हो जाएगा, अमाउंट्स इन डेबिट एंड अमाउंट्स इन क्रेडिट। और उसका रीजन ये होता है कि वी हैव अ डबल एंट्री सिस्टम। एक ट्रांजैक्शन का एक हिस्सा डेबिट होता है और दूसरा हिस्सा क्रेडिट होता है। क्लियर? तो इसलिए जितने भी अकाउंट्स आप लेजर में बनाएंगे, जब उनको वापस आप ट्रायल बैलेंस में डालकर बैलेंसिंग करेंगे तो उनके टोटल्स बराबर आने चाहिए, राइट? एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज इट्स अ डबल एंट्री सिस्टम। वी आर एंटरिंग बोथ इन डेबिट एंड क्रेडिट साइड। उसका एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूं आपको, बहुत सिंपल। आपने किसी से कैश परचेज किया, मतलब नगद माल खरीदा या कैश पे परचेज किया, तो क्या एंट्री होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट? कैश इज बीइंग क्रेडिटेड ओवर हियर बिकॉज इट्स अ रियल अकाउंट, और इसमें कैश हमारे पास से जा रहा है। एंड परचेजेस, इट्स अ गुड्स अकाउंट, हमारे पास सामान आ रहा है तो वी आर डेबिटिंग इट, इट्स अ रियल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर इसका आप 10,000 रुपए का आपने सामान खरीदा, इसका अगर आपको मैं ट्रायल बैलेंस बनाने को बोलूंगा तो परचेजेस का फिगर डेबिट साइड में आएगा 10,000 का बैलेंस, और कैश का बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा 10,000 का। तो दोनों बराबर हो गए। तो जितनी भी आप एंट्रीज करेंगे जर्नल में, वो सारी की सारी दोनों साइड बराबर एंट्रीज होती हैं, इसलिए बैलेंस दोनों के साइड में मैच करेंगे।
अगर मैच नहीं कर रहा है तो कहीं अमाउंट डालने में गलती हुई है, एक जगह अमाउंट गलत डल गया है, दूसरी जगह कुछ और डल गया है, या फिर you have made a mistake that you have wrongly entered transactions. कहीं पर wrong entry आपने कर दी है, दोनों साइड डेबिट कर दिया है या दोनों साइड क्रेडिट कर दिया है गलती से, राइट, या दोनों साइड अलग अलग अमाउंट डाल दी है, एक जगह 10,000 रुपए डाल दिया है, एक जगह 1,000 डाल दिया है. Only in those cases there will be a difference in trial balance. Clear? Last is preparation of final accounts. अब जो आज आप पढ़ रहे हो, जो शुरू किया है आपने, that is final accounts. तो आप ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस यू विल प्रिपेयर ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के बाद आप उसके ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या तो नेट लॉस निकलेगा या नेट प्रॉफिट निकलेगा, उससे आप फाइनल स्टेटमेंट बनाएंगे विच इज बैलेंस शीट. क्लियर? अकाउंटिंग साइकिल क्लियर हो गई आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड. इतना आप पढ़ चुके हो ट्रायल बैलेंस तक, सो आई जस्ट वांटेड टू रिकैप दैट. ट्रेडिंग अकाउंट, यहां पर पता नहीं, आई डोंट नो वेदर दे हैव गिवन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नॉट. नो, सो आई विल आल्सो टेल यू व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट? सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट जो है सबसे पहले बनाया जाता है, या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सबसे पहले बनाया जाता है. ये ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर जितना भी होता है उसको असर्टेन करता है. उस इस ट्रेडिंग अकाउंट के एंड में आपको या तो ग्रॉस लॉस दिखेगा या ग्रॉस प्रॉफिट दिखेगा. जो मेन कंपोनेंट्स हैं इसके वो है परचेज, सेल्स, सर्विसेज रेंडर्ड ऑन द सेल्स साइड एंड सर्विसेज रेंडर्ड ऑन द परचेजेस साइड. बेसिकली ट्रेडिंग का क्या फीचर है, अगर आप किसी कंपनी में देखेंगे, अगर वो कंपनी खाली ट्रेडिंग करती है तो वो कंपनी क्या करती है कि सामान कहीं से खरीद के लाती है बना हुआ और कहीं पर बेच देती है, राइट? जस्ट लाइक अ मिडलमैन इट ऑपरेट्स. तो क्या तो आप परचेजेस करोगे या आप सेल्स करोगे, और दोनों करोगे. तो परचेज जब आप करके लाते हो तो परचेज और परचेज से रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट साइड में आएंगे, और सेल्स से रिलेटेड कोई इनकम वो क्रेडिट साइड में आएंगी. सेल्स से रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर होगा वो फिर डेबिट साइड में आएगा. Very, very simple. You will pick it up from the trial balance. But I'm just telling you what are the components of trading account. तो आप परचेज करके लाएंगे सामान, उसके ऊपर कुछ खर्चा करेंगे, वो दोनों डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगी, और जो आप सेल्स करोगे वो क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट आएगी. क्लियर? अब आता है व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही इंफॉर्मेशन जाती है. द डिफरेंस इज, जो आप रॉ मटेरियल खरीद करके लाते हो, फैक्ट्री के अंदर उसको प्रोसेस करते हो, उसका खर्चा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का खर्चा, प्रोसेसिंग करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट बनाने का खर्चा, राइट? फैक्ट्री के डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने फैक्ट्री के डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे, और प्लस जो उसको आप फिनिश प्रोडक्ट को सेल करते हो मार्केट के अंदर, तो सेल्स, ये सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएंगी. तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सपेंसेस ऑन प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, राइट? और लास्ट जो सेल्स है उसकी, ये तो सब डेबिट में आएगा, सेल्स क्रेडिट में आएंगी. क्लियर? और सेल्स के ऊपर कोई खर्चा किया है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं आएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में प्योरली बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज आएंगी, प्योरली बिजनेस रिलेटेड. फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मेरा ये फिनिश क्या कहते हैं उसको, फैब इंडिया है जैसे, फॉर एग्जांपल अगर आप फैब इंडिया में देखेंगे तो बहुत सारा कपड़ा मैन्युफैक्चर्ड होता है. सूट्स बने हुए होते हैं, कुर्ते बने हुए होते हैं, जैकेट्स बनी हुई होती हैं, राइट? साड़ीज बनी हुई होती हैं. तो ये जो इसको बैकएंड में बनाता है, दैट इज द पर्सन हु इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरर. तो मैन्युफैक्चरर का क्या है, जब वो रॉ मटेरियल खरीद के लाया, फॉर एग्जांपल कॉटन, सिल्क, यार्न, ये सब उसके लिए रॉ मटेरियल है. तो जो खरीद के लाया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, वो खर्चा यहाँ पर आएगा, राइट? वो हम डेबिट साइड में डालेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की. अब उसको वो प्रोसेस करेगा, धागों को सिलेगा, सारे कच्चे कपड़ों को धोएगा, राइट? फैक्ट्री के अंदर उसको बनाना शुरू करेगा, मशीन के ऊपर जोड़ना शुरू करेगा, फिनिशिंग शुरू करेगा. तो जो पावर का खर्चा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो रहा है, मशीनरी का खर्चा हो रहा है, ऑयल
रिफ्यूलिंग का खर्चा हो रहा है फैक्ट्री के अंदर, लेबर को पेमेंट किया जा रहा है जो लेबर उस पर काम कर रही है, पावर लूम्स पे या हैंड लूम्स पे, राइट, या मशीन्स पे, ऑटोमेटिक मशीन्स पे काम कर रही है। तो ये सारा खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, जो भी डायरेक्टली इन्वॉल्व है फैक्ट्री एक्सपेंसेस में, वो सब डेबिट साइड में आएगा। इस सामान को जब बेच दिया जाएगा, फाइनली जो सामान बन जाएगा, फैब इंडिया को पहुंचा दिया जाएगा, उससे जो इनकम होगी दैट इज कॉल्ड सेल्स, सेल ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स, वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा। क्लियर? सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट? Yes, sir. Good. Clear. Yes, sir. Anybody who has got questions over here? Okay. Silence, I will take it as no. It is the first stage of preparation of final accounts of a trading concern. Manufacturing account, manufacturing concern. Concern का मतलब है firm, company, organization. ट्रेडिंग अकाउंट और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट रिकॉर्ड्स ओनली नेट सेल्स एंड डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो भी आपकी बिजनेस का डायरेक्ट कॉस्ट है वो यहां पर कैप्चर होगा। इनडायरेक्ट जो भी खर्चे होते हैं आपके, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम्स, वो यहां पर नहीं आएंगी। द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट डिस्क्लोजेस द ग्रॉस प्रॉफिट और द ग्रॉस लॉस। यहां पर अगर जो आपकी इनकम है ट्रेडिंग अकाउंट की या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की वो ज्यादा होती है, क्रेडिट साइड ज्यादा होती है डेबिट साइड से, तो ऑटोमेटिकली आपको ग्रॉस प्रॉफिट होगा। और अगर डेबिट साइड ज्यादा हो जाती है क्रेडिट साइड के कंपैरिजन में तो आपको ग्रॉस लॉस होगा। क्लियर? द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जितना इसका बैलेंस निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, वो ऑटोमेटिकली इसके नीचे ही बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द फॉर्मेट इज सेम एंड बोथ द अकाउंट्स आर क्लब्ड। The only difference is ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर बनता है, बैलेंसिंग होती है, उसका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ट्रांसफर होता है नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पहला जो आइटम होगा वो या तो ग्रॉस लॉस होगा या ग्रॉस प्रॉफिट होगा, विच विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है? Yes, sir. नाउ द क्वेश्चन इज, जब हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की इंपॉर्टेंस क्या है? जब हमको मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही प्रॉफिट निकालना है तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग आउट ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट? फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो आपका मैंने बताया जो बिजनेस का ब्रेड एंड बटर है, जिस बिजनेस में आप काम करते हो डायरेक्ट, उस बिजनेस की क्या फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन है, कितना प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, कितना खर्चा हम सेल्स पे और परचेजेस पे कर रहे हैं ऑफ द प्रोडक्ट, वो आपको यहां से पता चलेगा। सॉरी, गिव मी अ मिनट, सॉरी। सॉरी। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन जो है हमको तब पता चलती है जब हम इस तरीके का अकाउंट बनाते हैं, जिससे हमको ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट प्योर पता चलता है कि क्या फाइनल अकाउंट हमारा बनना शुरू हुआ है। तो प्योरली अबाउट द बिजनेस। अब कोई बोलेगा कि कोर बिजनेस का क्या मतलब है, तो मैं उसको दोबारा से क्लैरिफाई कर देता हूं। कोर बिजनेस का मतलब ये है कि या तो आदमी कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो तो प्योर मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट, रॉ मटेरियल लाना और फाइनल प्रोडक्ट बनाना, इतना खर्चा जो है और उसके अंदर जो इनकम है, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इनकम और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। दे आर ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ऊपर बनता है, राइट, जिनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनडायरेक्ट रिलेशन है विथ योर बिजनेस। ठीक, जो ट्रेडिंग अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है वो रेशियो बताता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है,
तो जो रेशियो है ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको और कितना आपका सामान बिक रहा है, इसके बीच में आपको रेशियो बताता है। आपकी सेल्स जितनी है, ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा उतना ज्यादा होना चाहिए। अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं। तो ये रेशियो भी आपको पता चलेगा। ये जब मैं आपको बना के दिखाऊंगा अकाउंट, तब मैं आपको उसमें दिखाऊंगा कि कैसे इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। सो द रिलेशनशिप हैज टू बी पॉजिटिव बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और क्या क्या इंफॉर्मेशन ये बताता है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज में एफिशिएंसी है कि नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप ट्रेडिंग में कहीं ज्यादा खर्चा कर दे रहे हैं, सामान लाने का खर्चा बहुत ज्यादा है, बेचने का खर्चा बहुत ज्यादा है, तो वो आपको यहां से पता चलेगा। ठीक, अब आप यहां पर और क्या चीज कर सकते हैं, सेल्स को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, इन सब चीजों को बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं, राइट। एंड इट ऑल्सो हेल्प यू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लोजिंग स्टॉक। कितना स्टॉक आपके पास रखा हुआ है, चाहे रॉ मटेरियल का हो, चाहे फिनिश प्रोडक्ट्स का हो, चाहे जो सामान आप खरीदते बेचते हो उसका हो, कितना स्टॉक आपके पास रखा है, आपको पता है, कितना आपको और खरीदना है, इसमें आपकी हेल्प करता है। क्लियर? क्लियर? यस सर। Yes, sir. मैं यहीं पर इसको फिनिश कर रहा हूं। अभी 5 मिनट है क्लास में, बट मैं इसको फिनिश कर रहा हूं यहीं पे, क्योंकि फॉर्मेट है, फॉर्मेट आई वांट टू शेयर इन द नेक्स्ट क्लास। आई डू नॉट वांट टू स्टार्ट फॉर्मेट टुडे। 5 मिनट ही है केवल। इसको प्लीज आप लोग घर पे दोबारा से पढ़िए, बुक में से पढ़िए, समझिए जो मैंने आज Oh. पढ़ाया है, और बुक में से जो है, जो इसके अंदर टेक्निकल टर्म्स आए हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, ये मैं एक एक करके आपको सारा क्लैरिफाई करूंगा। इट विल टेक सम टाइम, तो हो सकता है हमको एक्स्ट्रा लेक्चर भी करें, बट थर्सडे को आप इसको प्लीज घर से पढ़ लीजिए, एक बार बुक से जरूर रेफर कर लीजिए। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, जैसे लेजर, ट्रायल बैलेंस और जर्नल था, उससे थोड़ा ज्यादा टेक्निकल है ये, तो इसमें ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। प्लीज अपना होमवर्क करिए। थर्सडे से मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स दूंगा। आज तो पढ़ा रहा हूँ, थर्सडे को जब क्लास खत्म होगी तो आई विल गिव यू असाइनमेंट्स, बट प्लीज इसको ध्यान से स्टडी करिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन जो आप देख रहे हो, मैं आज गूगल ड्राइव पे जो फोल्डर बनाया हुआ है मैंने, उस पर डाल देता हूं। आप लोग उसको, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा लिंक, आप लोग प्लीज उसको दोबारा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है? Okay, sir. ठीक है, Yes, sir. Thank you. ओके, थैंक यू। मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ एंड आई अपलोड दिस प्रेजेंटेशन। और ये कॉल रिकॉर्ड हो गई है, तो आप रिकॉर्डेड कंटेंट भी स्काइप पर आकर के दोबारा पढ़ सकते हैं। ठीक है? ओके सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू।